السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا۔ تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، دوسرا شخص مجلس کے بالکل کنارے بیٹھ جاتا ہے، قریب نہیں آتا، اور تیسرا شخص اس مجلس سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ، میں کیا ان تین لوگوں کے بارے میں، تین لوگوں کی حقیقت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو میرے سے قریب ہو کر آ کر بیٹھ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی پناہ دے دی ہے، وہ اللہ تعالی کی پناہ میں آ گیا۔ دوسرا شخص جو مجلس کے اخیر میں بیٹھا، قریب نہیں آیا، وہ قریب آنے سے شرما گیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے شرما گیا۔ تیسرا آدمی جو میری مجلس میں آ کر بیٹھنے کے بجائے واپس چلا گیا، اس نے میری مجلس سے اعراض کر لیا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے اعراض کر لیا۔ اس حدیث میں دراصل دین کے علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کی فضیلت بتائی گئی، اور اس قسم کی دین کی مجلسوں سے اعراض کرنے والے، پیٹ پھیرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بیٹھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اللہ تعالی کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی پناہ اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے دینی مجلسوں سے اعراض کرنے والوں کا انجام اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ ان سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، دین کا علم حاصل کرنے کی جو توفیق ہے، اس توفیق سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین کے علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خود سے دین کی مجلسوں سے اعراض کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزا یہ دی جاتی ہے کہ جو پیٹ پھیر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خیر کے راستوں سے پیٹ پھیر دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس نے اعراض کیا، اللہ بھی اس سے اعراض کر لیا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دین کی مجلسوں کو مس نہیں کرنا چاہیے، قریب آنا چاہیے، دین کی مجلسوں سے قریب ہونا چاہیے، علماء کی باتوں سے قریب ہونا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص توفیق ملتی ہے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سلسلہ نماز کا چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے نماز کے واجبات کو تفصیل سے جانا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کی سنتوں کو اب ہم جانیں گے۔ نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ اگر وقت بچا تو پھر آگے اور کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ نماز کی سنتوں کا کیا مطلب ہے؟ سنتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کچھ ایسے کام ہم کرتے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا ابھی۔ تو نماز کے اندر ہونے والے کچھ ایسے کام
जिसके करने से आपको सवाब मिलेगा, जिसके करने से आपको सवाब मिलेगा, नबी की वो सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी उस सुन्नत को छोड़ देता है, उसको नहीं अदा करता, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, उसकी नमाज सही होगी। बस ये है कि सवाब में कमी आएगी, सवाब में कमी आएगी। सुन्नत का मतलब ऐसा काम जिसके छोड़ने की वजह से सवाब में कमी आएगी, आपका सवाब कम हो जाएगा, लेकिन नमाज सही हो जाएगी आपकी। ये मतलब होता है एक मोटे अंदाज में सुन्नत का, नमाज की जो सुन्नतें हम जानने जा रहे हैं। लेकिन नमाज हो जाएगी बोल के उसको हल्का भी नहीं समझना। नमाज हो जाएगी, लेकिन वो नबी की सुन्नत समझ के एक मुसलमान के दिल में नबी की सुन्नतों की मोहब्बत होना चाहिए, उसको हल्का नहीं समझना। क्योंकि हमारी ये जो मजलिस हो रही है, ये इल्म दीन हम हासिल कर रहे हैं डिटेल से, इसीलिए मुझे ये वजाहत करना पड़ रहा है कि सुन्नत किसको बोलते हैं, आपको सिखाना है मुझे यहां पे, समझ रहे हैं। तो सुन्नत का मतलब जिसके छोड़ने से सवाब में कमी आती, लेकिन नमाज सही हो जाती, नमाज सही हो जाती। क्या है सुन्नतें? सबसे पहली सुन्नत यह है, जैसे ही आप रकात बांधते हैं अल्लाहु अकबर बोल के एक दुआ पढ़ते हैं आप, दुआए सना, क्या बोलते हैं उसको? दुआए सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। एक और दुआ भी है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ी वल मग़रिब। हाँ, ये जो दुआ है लंबी दुआ, ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी दुआएं आई हैं इस जगह, सिर्फ वो दुआ नहीं सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, इसके अलावा और भी दुआएं हैं। चाहे तो ये पढ़ें, चाहे तो वो पढ़ें, कोई एक पढ़ना है आप, वो भी पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं, कोई एक पढ़िए आप। और ये दुआ अक्सर लोगों को यही याद होती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला। ये जो दुआ है ना, दुआ आप पढ़ते हैं, ये दुआ सुन्नत है। ये दुआ पढ़ना क्या है? सुन्नत है। अगर आप नहीं पढ़े, सवाब में कमी आ जाएगी आप, लेकिन आपकी नमाज सही हो जाएगी, आपकी नमाज अदा हो जाएगी, दोहराने की जरूरत नहीं है आप। यही मतलब होता है सुन्नत का। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अल्लाहु अकबर बोल के आप कुछ देर खड़े हैं, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किए। अबू हुरैरा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब रकात बांधते हैं, फौरन रकात बांधने के आप कुछ देर खामोश रहते हैं, क्या मसला है, क्या पढ़ते हैं आप? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये दुआ पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन खतायाया बिल माई व सलजी वल बरद। लंबी दुआ है, ये दुआ मैं पढ़ता हूं। ये दुआ सना जो है ना, दुआ सना, रकात बांधने के फौरन बाद आप जो दुआ पढ़ते हैं, ये सुन्नत है। ये पढ़ना क्या है? सुन्नत है। दूसरी सुन्नत नमाज में पढ़ी जाने वाली क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कब पढ़ना? ये सूरह फातिहा पढ़ने से पहले, सूरह फातिहा पढ़ने से पहली रकात में, सिर्फ पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ये पढ़ना सुन्नत है। लेकिन हर रकात में सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना है क्या? नहीं, सिर्फ पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी तुम कुरान मजीद पढ़ने का इरादा करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शैतान से पनाह तलब करो, मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हो जाते, नमाज शुरू करते, यानी दुआए सना पढ़ते, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, ये पढ़ा करते। ये जो मैं थोड़ा अल्फाज चेंज के साथ मैंने जिक्र किया ना, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, ये भी पढ़ सकते आप,
या फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी पढ़ सकते हैं, या तो ये या तो वो। ये क्या है? सुन्नत है, ये पढ़ना सुन्नत है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना भी, पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये सुन्नत है। इसी तरह हर रकात में कोई भी नई सूरत आप शुरू करते हैं सूरह फातिहा के बाद, तब भी क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई भी सूरत आप शुरू कर रहे हैं तो, जैसे सूरह फातिहा खत्म हो गया, सूरह इखलास पढ़ने जा रहे हैं आप, आपको करना क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इस तरह। तो अगर सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना। हां, अगर बीच में से पढ़ रहे हैं कहीं, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीच में का क्या मतलब? शुरू सूरत से नहीं, बीच में से पढ़ रहे हैं आप, आमन और रसूल, जैसा कि पढ़ा गया है इशा में अभी, आमन और रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बी, ये सूरत के शुरू से है क्या? नहीं, ये बीच का हिस्सा है ये। हाँ, तो इस तरह अगर बीच में से कहीं से पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वाज़ेह है मसला ये? जी हाँ। तो दूसरी सुन्नत में ये बता रहा था कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। तीसरी सुन्नत आमीन बोलना। तीसरी सुन्नत क्या है? आमीन बोलना। जो हम लोग आमीन बोलते हैं ना, ये सुन्नत है। किसी ने अगर आमीन बोलना छोड़ दिया, हाँ, उसकी नमाज सही है, लेकिन सवाब में कमी आएगी, उसकी नमाज में सवाब में कमी आएगी। वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नबी वाइल इब्न हुजर कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलद्दाल्लीन पढ़ते, आमीन बोलते और बुलंद आवाज से बोलते, बुलंद आवाज से बोलते। और दूसरी हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया, इदा अम्मन अल इमाम फअम्मिनु फइन्नहु मन वाफक़ तअमीनहु तअमीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। कहा कि जब इमाम आमीन बोले तुम भी आमीन बोलो, इसलिए कि अगर जिस आदमी की आमीन फरिश्तों के आमीन से मिल जाए, अल्लाह ताला उसके सारे पिछले छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। बड़ी फजीलत की बात है कि इससे पिछले गुनाह माफ होते हैं। लेकिन एक गलती हमसे यह होती है कि जब इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है, वलद्दाल्लीन के बाद अभी वो आमीन नहीं बोलता, उससे पहले ही हम आमीन बोलना शुरू कर देते हैं। इमाम से पहले ना बोलें आप, या तो इमाम के साथ बोलें, इमाम के साथ बोलें, जैसे आमीन बोलना शुरू किया इमाम, आप भी आमीन बोलना शुरू कर दीजिए, साथ में ही शुरू कीजिए, या कुछ देर के बाद शुरू कीजिए, लेकिन पहले नहीं। इमाम अभी बोला ही नहीं, उससे पहले। लेकिन इसमें इमाम के लिए भी एक पैगाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि जब वलद्दाल्लीन पढ़े इमाम, तो आमीन बोलने में लेट ना करे। क्यों? अगर इमाम आमीन बोलने में लेट करेगा तो उससे पहले पीछे वाले आमीन बोलना शुरू करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं। इमाम वलद्दाल्लीन बोला, खड़ा हो गया कुछ देर, पीछे वाले वेट करते गया इमाम का, नहीं करते, वो खुद ब खुद आ जाता है आमीन पीछे वालों के जबान पे। तो इमाम के लिए भी जरूरी है कि जब वलद्दाल्लीन बोले तो फौरन आमीन बोले, वो लेट ना करे इमाम। अगर वो लेट करेगा तो उससे पहले पीछे वाले बोलना शुरू कर देंगे, जो कि मना है। इमाम से पहले नहीं करना कोई काम नमाज में, जो जहरन जो होते हैं काम। तो मेरे हाल हदीस में भी देखिए नबी वाइल इब्न हुजर क्या बयान करते हैं, जब अल्लाह के नबी वलद्दाल्लीन पढ़ते तो फौरन आमीन बोलते, लेट नहीं करते। तो खुलासा ये है कि आमीन बोलना ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। और इसकी बड़ी फजीलत आई है कि आप आमीन बोलते हैं, फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं उस पे। जब वलद्दाल्लीन बोलता है इमाम तो फरिश्ते भी बोलते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, जब आपका आमीन और फरिश्तों का आमीन मिल जाता है एक साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके पिछले सारे के सारे छोटे गुनाहों को बख्श देता है। बड़ी फजीलत है। चौथी सुन्नत क्या है? चौथी सुन्नत यह है, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई दूसरी सूरत जो आप पढ़ते हैं ना, यह सुन्नत है। ये क्या है? ये
सुन्नत है। जो दूसरी सूरत आप पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह फलक पढ़ते हैं, या कोई दूसरी सूरत 20 से पढ़ते हैं आप, सूरह फातिहा के बाद जो पढ़ी जाने वाली सूरत है वो सूरत पढ़ना सुन्नत है, अफजल है। ठीक है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। जो नमाजें 3 और 4 रकात वाली हैं, इन नमाजों में आप पहले की 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत पढ़ते थे, पहले की 2 रकातों में। लेकिन बाद की 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे अल्लाह के नबी। तो हम लोगों को भी 3 और 4 रकात वाली नमाजों में पहले की 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत पढ़ेंगे, लेकिन आखिर की जो रकातें हैं उन रकातों में सिर्फ हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभार अगर आदमी बाद की 2 रकातों में या मगरिब के 1 रकात में आखिर की कोई सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत भी पढ़ता है, कभी कभार गुंजाइश है, लेकिन उसको आदत ना बनाए। आदत क्या होना है, पहले की 2 रकातों में दूसरी सूरत पढ़ेंगे आप सूरह फातिहा के बाद, लेकिन दूसरी रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ये सवाल बार बार किया जाता है लोगों की तरफ से, ये मसला आप जहन में रखें। ये जो है चौथी सुन्नत हो गई हमारी। अच्छा, पांचवी, अच्छा एक सवाल इसमें ये है, इमाम अगर जोर से किरात कर रहा है, जोर से किरात फजर की नमाज में करता है इमाम, जोहर की नमाज में, अफवन मगरिब की नमाज में, और कौन सी नमाज, इशा की, ये 3 नमाजों में इमाम क्या करता, जोर से पढ़ता ना। तो जब इन 3 नमाजों में जो जोर से पढ़ी जाने वाली नमाजें, इसमें पीछे पढ़ने वालों को पहले की 2 रकातों में भी कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा आप पढ़ लिए, बस अब सुनना है उसको जोर से पढ़ी जाने वाली नमाजों में। लेकिन जोहर और असर की नमाज में हल्की किरात होती है ना, सुनाई नहीं देता। इन 2 नमाजों में पहले की 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत भी आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा और आप भी पढ़ेंगे। वाज़ेह है मसला जी। ये चौथी सुन्नत हो गई। पांचवी सुन्नत क्या है, पांचवी सुन्नत यह है कि आदमी जब रुकू के बाद उठकर खड़ा होता है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, रब्बना वलकल हम्द पढ़ते हैं। अगर इमाम है तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल। लेकिन वो मैं क्या बोला था, रब्बना वलकल हम्द पढ़ना वाजिब था, वो जरूरी था वो पढ़ना। लेकिन अब सुन्नत क्या है मालूम, रब्बना वलकल हम्द के बाद कुछ दुआएं हैं, उन दुआओं को पढ़ना सुन्नत है, मुस्तहब है, यानी सवाब ज्यादा मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे रब्बना वलकल हम्द इतना पढ़े आप, उसके बाद एक दुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा शिता मिन शैइन बअदु अहल सनाई वल मजद अहक्कु मा क़ाल अल अब्द व कुल्लुना लक अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये दुआ है, रब्बना वलकल हम्द के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ को पढ़ते थे। इस दुआ में पूरी की पूरी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ पर मुश्तमिल है, उसकी हम्द व सना पर मुश्तमिल है। यानी अल्लाह के नबी कहते थे कि अल्लाह आसमान और जमीन भर तेरी हम्द व सना हो, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा शित, जितना तू चाहता है उसके भर तेरी ही हम्द व सना हो। वकुल्लुना लक अब्द, हम सब के सब अल्लाह तेरे बंदे हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत, अल्लाह जिसे तू दे दे उससे रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। वला मुअतिय लिमा मनअत, जिससे तू रोक ले देने से उसको दुनिया का कोई आदमी दे नहीं सकता। वला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द, तुम में से किसी बुजुर्गी की बुजुर्गी अल्लाह ताला से कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती थी रब्बना वलकल हम्द के बाद। इस दुआ को पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नत है, सवाब ज्यादा मिलेगा। एक दूसरी दुआ है
तकरीबन आप में से अक्सर लोगों को याद रहती है, वो है रब्बना वलकल हम्द। इतना बोलने के बाद हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये अक्सर लोगों को याद रहती। ये भी बहुत अच्छी दुआ है, इतनी लंबी दुआ पढ़ना भी सुन्नत है, लेकिन रब्बना वलकल हम्द इतना बोलना जरूरी है। उसके बाद ये जो दुआएं हैं पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरह एक सुन्नत नमाज में जो अदा होने वाली है, पहले तशहुद के बाद और आखिरी तशहुद के बाद, 3-4 रकात में 2 तशहुद होते हैं ना, तो पहले तशहुद और आखिरी तशहुद में अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के बाद दुआएं करना यह सुन्नत है। दुआएं करना है आदमी को। अत्तहियात पढ़ लिया, दरूद पढ़ लिया, दरूद पढ़ना भी सुन्नत है। पहले तशहुद में दरूद पढ़ना सुन्नत है, आखिरी तशहुद में पढ़ना रुकन है, जरूरी है। लेकिन दोनों तशहुद में सुन्नत यह है कि अत्तहियात और दरूद के बाद दुआएं करें आप अल्लाह ताला से। ये दुआओं का वक्त है। तशहुद में जो हम बैठते हैं ना, ये दुआओं का वक्त है। पहले अत्तहियात, फिर दरूद, उसके बाद दुआएं। जो चाहें आप दुआएं कर सकते हैं, लेकिन अरबी जबान में होना चाहिए। अरबी जबान में, उर्दू जबान में नहीं, क्योंकि नमाज सबके सब अरबी जबान में है, तो अरबी जबान में होना चाहिए। बेहतर यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी दुआएं आप याद कर लें। छोटी छोटी दुआएं हैं। अगर किसी को कोई दुआ याद नहीं है, लेकिन ये तो दुआ याद होती है ना सबको, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये बहुत बड़ी दुआ है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यही दुआ पढ़ते थे, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों को समेट लिया है। अल्लाह, तो दुनिया की सारी भलाइयां भी मुझे अता फरमा और आखिरत की सारी भलाइयां भी मुझे अता फरमा, और रोज क़ियामत मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। ये तर्जुमा है इस दुआ का, जो कुरान में आई है। अल्लाह ने इसका जिक्र किया इस दुआ का, तो ये दुआ तो याद रहती है आपको। तो दोनों तशहुद के बाद यही दुआ बार बार पढ़िए आप, इसका माने को समझते हुए। अगर आपको दुनिया में किसी अच्छी चीज की जरूरत है, आप वो दिमाग में लाइए, इस दुआ को पढ़िए, आपका मकसद पूरा हो जाता है। अगर आपकी जरूरत औलाद की है, जहन में लाइए कि अल्लाह मुझे औलाद दे, और ये दुआ पढ़िए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयां दे। दुनिया की भलाइयों में औलाद है क्या नहीं है, वो दुआ हो जाती है उससे। अगर आपको पैसों की जरूरत है, तंगी है, आप चाहते हैं अल्लाह से रिज्क मांगे, दिमाग में लाइए, ये दुआ पढ़िए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयां अता फरमा। दुनिया की भलाइयों में माल भी है, उसके जरिए इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसी तरह इस दुआ के अंदर दुनिया की जो भी भलाई हो सकती है, हसनतन इस एक लफ्ज में शामिल है। सुभान अल्लाह, हसनतन का जो लफ्ज है ना अरबी में, पूरी दुनिया की जितनी भी भलाइयां आप ले लें, एक जुमले में, एक लफ्ज में अल्लाह के नबी ने समेट दिया, यानी अल्लाह ताला ने उसको समेट दिया। तो लिहाजा ये दुआ तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरी दुआएं हैं तो पढ़िए आप, लेकिन अरबी जुबान में होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह सुन्नत जो है, एक सुन्नत ये भी है नमाज में होने वाली एक सुन्नत, रफुल यदैन करना। क्या करना? रफुल यदैन का मतलब क्या? हाथ उठाते हैं ना हम लोग। कब कब उठाते हाथ हम लोग? जब नमाज शुरू कर रहे होते हैं तब हाथ उठाते, जब रुकू में जाते तब उठाते, रुकू से जब उठते तब उठाते हम लोग। ये 3 जगह हो गया ना। एक और जगह भी है रफुल यदैन करने की। कौन सी जगह वो? 2 रकात के बाद जब उठ खड़े होते हैं आप, पहले तशहुद, 3 या 4 रकात वाली नमाजों में पहले तशहुद के बाद उठते हैं ना, तब भी आपको रफुल यदैन करना। ये 4 जगहों पर हाथ उठाने का जिक्र मिलता है हदीसों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल मिलता है। ये जो हाथ उठाते हैं ना, इसे रफुल यदैन बोलते हैं हम, हाथों को उठाना। ये क्या है? ये सुन्नत है। ये आदमी अगर नहीं उठाया, नमाज सही नहीं होगी क्या उसकी? हो जाएगी नमाज उसकी, लेकिन सवाब में कमी आएगी, क्योंकि नबी की एक सुन्नत तो उसने छोड़ दिया। ये क्लासों में यही फायदा होता है
अक्सर लोग समझते हैं इन्हें रफुल यदैन नहीं किया इसकी नमाज ही नहीं होगी। गलत बात है, ये जाहिलाना बात है। अगर यहां आप सीखते हैं तो समझ में आता है कि कौन सा अमल किस कैटेगरी का है, कौन से अमल से नमाज नहीं होती, कौन से अमल से नमाज हो जाती लेकिन सवाब में कमी आती। ये मसाइल यहीं जानने को मिलते हैं, दूसरों को बता सकते हैं आप भी खुद छोड़ देते हैं तो आपके इत्मीनान भी होता है क्योंकि आपके पास इल्म होता है। अच्छा, रफुल यदैन जो करने की बात है ना, सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है इसमें। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हम उस पर अमल करेंगे, ये पहली बात है। वो हिकमत समझ में आए या ना आए, ये पहला हमारा बुनियाद और बेसिकली हमारे अंदर ये चीज होना चाहिए कि नबी ने उठाया, उठाएंगे बस। वो क्यों उठाया, वो बात की बात। अच्छा, कभी कभार हिकमतों को जानने से दिलों को ज्यादा इत्मीनान हासिल होता है। हिकमत क्या है, हाथ उठाते थे। उलमा इकराम कहते हैं आदमी जब रफुल यदैन हाथ उठाता है, क्या बोलता है जबान से, अल्लाह अकबर बोलता है ना, अल्लाह अकबर बोलता है। रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर बोल के रफुल यदैन करके जाता, रुकू से जब सर उठाता तो अल्लाह अकबर बोल के उठाता, दूसरे पहले तशहुद के बाद जब उठता अल्लाह अकबर बोलते हुए हाथ उठाता। सही है ना, सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं कि देखो, नमाज एक ऐसी इबादत है, इसमें हर मालदार बादशाह, दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो मस्जिद में आकर जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो दुनिया वालों को ये तसव्वुर देता है कि मैं अगरचे दुनिया में बड़ा हूं लेकिन मैं रब का मोहताज हूं। मैं किसका मोहताज हूं, रब का मोहताज हूं। अब ये मोहताजगी कैसे जाहिर करता वो, नमाज में दो तरीकों से। एक तरीका बोल रहा जबान से, अल्लाह अकबर बोल के, जबान से भी उसका इजहार करता, अपने एक्शन से भी उसका इजहार करता। जबान से क्या बोलता वो, अल्लाह अकबर। क्या मतलब अल्लाह अकबर का, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं होऊंगा बड़ा, मुल्क का बड़ा होऊंगा, पूरे मुल्क की हुकूमत मेरे पास होगी, फला दौलत होगी, वो होऊंगा, लेकिन मैं कोई हैसियत का नहीं हूं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये जबान से इजहार करता। दूसरा, जब हाथ उठाता है ना, हाथ उठाकर भी ये इजहार करता है कि अल्लाह मैं तेरे सामने आजिज बंदा हूं। इसको समझने के लिए, पुलिस अगर किसी को पकड़ लिया, गन थमा दिया, क्या करता आदमी, क्या करता आदमी, क्या मतलब इसका, मैंने तेरे सामने हथियार डाल दिया है भाई, मैं मान लिया तुझे, मैं तेरे ताबे हो गया। हाँ? मतलब तू जो बोलेगा वो सुन लूंगा मैं, यही मतलब होता है ना इसका। यही करता है आदमी यहां पर। तकबीर जो आदमी रफुल यदैन करता है, उलमा इसमें हिकमत ये बताते हैं, चूंकि आम हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज है कि आदमी अपने आप को सरेंडर करने के लिए, अपने आप को पुलिस या किसी के सामने झुकाने के लिए इन दो हाथों का इस तरीके से इस्तेमाल करता है। और यहां हर अमीर और गरीब यहां आकर अपनी जबान से भी उसका इजहार करता है कि मैं अल्लाह के सामने सरेंडर हूं, अल्लाह सबसे बड़ा है, और अपने हाथों से भी इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह तू ही बड़ा है, मैं तेरे सामने सरेंडर हूं, मैं झुक रहा हूं तेरे सामने। बात समझ रहे हैं, ये उलमा इकराम ने रफुल यदैन की हिकमत बताई है। बहरहाल ये रफुल यदैन करना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है। और इसी तरह एक और सुन्नत ये है, जब आप रकात बांधते हैं तो सीधा हाथ आपके लेफ्ट हाथ पर रखते हैं, सही है ना। तो ये सीधा हाथ लेफ्ट हाथ पर रखना सीने पर, ये सुन्नत है। अब यहां हमारे बाज लोगों के अंदर इल्म ना होने की वजह से थोड़ा तशद्दुद इख्तियार करते हैं। क्या, कोई आदमी अगर रकात यहां बांध लिया, बोलते हैं तेरी नमाज ही नहीं हुई। ये गलत बात है, उसकी नमाज हो जाएगी भाई, उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन चूंकि उसने नबी की एक सुन्नत को छोड़ा तो सवाब में कमी आएगी। आप इतना बता सकते हैं कि अल्लाह के बंदे,
نبی کا طریقہ یہ تھا کہ یہاں رکعت باندھتے تھے، یہاں باندھو، نیچے مت باندھو، ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ مت کیجئے کہ تیری نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، نماز ہو جاتی، لیکن نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے ثواب میں کمی آتی ہے۔ ایک اور سنت یہ ہے نماز میں ہونے والی کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کی نظریں سجدے کی جگہ ہونا چاہیے۔ کس کی جگہ؟ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی سجدہ گاہ سے اس وقت تک نہ ہٹیں جب تک کہ آپ کعبہ سے نکل گئے، یعنی جب تک آپ نماز کی حالت میں تھے تو آپ کی نگاہیں کہاں تھیں؟ سجدے کی جگہ۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا ہے اگر کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے اس کو، تب بھی اس کی نگاہیں کعبہ نہیں بلکہ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کعبۃ اللہ نظر آ رہا بول کے کعبۃ اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھتے، اگرچہ کہ بعض علماء نے لکھا ہے یہ، لیکن نبی کی سنت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، کعبہ بھی سامنے ہے تب بھی آپ سجدے کی جگہ دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہ جو نگاہیں ہوتی ہیں نا سجدے کی جگہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع باقی رہتا ہے۔ نماز میں دوسرے خیالات نہیں آتے، وہ جگہ دیکھنے سے دوسرے خیالات آنے سے آدمی کو وہ یہ عمل بچا لیتا ہے۔ اگر آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے مطلب خیالات بھی آتے ہیں اس کے دل و دماغ میں، اسی لیے سجدے کی جگہ دیکھنے کا بہت بڑا فائدہ علماء نے یہ بتایا کہ نماز میں آدمی کا خشوع اور خضوع باقی رہتا ہے، نماز کی طرف پوری توجہ اس کی لگی رہتی ہے اگر وہ وہاں دیکھتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ غور کریں گے تو بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہے، مطلب غلطی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو نقصانات، ایک تو نبی کی سنت کی مخالفت، دوسرا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس سنت کا بڑا فائدہ ہے خشوع اور خضوع، اسی لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ نمازی کو وہ سجدے کی جگہ اپنی نگاہوں کو رکھے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح رکوع کی حالت میں کچھ ایسی سنتیں ہیں جس کا خیال کرنا ضروری ہے ایک آدمی کو۔ رکوع کی حالت میں رکوع کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے رکوع میں کچھ سنتیں یہ ہیں کہ آپ رکوع جب کرتے ہیں تو آپ کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ کی پیٹھ کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے رکوع کی۔ زیادہ آپ جھکے بھی نہیں، زیادہ اٹھے بھی نہیں، رکوع میں لیول ہونا چاہیے، ایک سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ آپ اپنے انگلیوں کو چوڑی کر کے کھول کر آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، گڑگوں کو آپ کھول کر پکڑیں۔ بعض لوگ ایسا ہی پکڑتے، بند رہتے ہاتھ، نہیں، کھول کر پکڑنا گھٹنوں کو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے رکوع میں ہونے والی۔ اسی طرح بہت زیادہ غلطی عام ہے رکوع کی حالت میں جو سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ آدمی رکوع کر رہا ہے تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو حصہ یہاں بازو لگا لیتا، اس کو لگا لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ رکوع کرتے ہوئے یہ جو ہے نا اس سے بازو ہونا چاہیے، اس سے الگ ہونا چاہیے، یہ جو بازو ہے اس سے الگ ہونا چاہیے، دونوں جگہ نہیں ملانا ہے دونوں کو رکوع کی حالت میں، لیکن اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن اس میں غلطی یہ بھی کرتے لوگ، رکوع جب کرتے ہیں تو ہاتھ ایسے کر دیتے، پورا ایک دم ایسے کر دیتے نا ہاتھ۔ بعضو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھار اسے تکلیف بھی ہونا شروع ہو جاتی۔ نماز میں تکلیف دینا صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ دیکھو نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان ہاتھوں کو آپ اس سے الگ رکھیں، آپ تھوڑا بھی الگ رکھیں گے تو کافی ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو بہت زیادہ جگہ جائے گی، بازو والوں کو تکلیف ہوگی۔ اگر خاص طور سے آزو بازو آپ کے ساتھ کوئی ہیں تو آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسے ہی کریں لیکن اس سے ہٹا کے رکھیں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی سجدے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جو سنت کے درجے کے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ سجدے میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے جب چلے جاتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کے یہ دونوں ہاتھ
आपके दोनों कानों के बराबर होना चाहिए या कंधों के बराबर होना चाहिए, कानों के बराबर या कंधों के बराबर होना चाहिए सजदे की हालत में, एक चीज। दूसरी चीज यह है, जो ज्यादा गलती होती है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती है, वो सजदे की हालत में लोग इन हाथों को इससे मिला लेते हैं, या ये रानों को टच करते, कोहनी को क्या करते, रानों से लगा लेते। हाँ, ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। आपको रानों को भी टच नहीं करना है, कोहनी को, और इन दो बाजुओं को साइड से लगाना भी नहीं है, बल्कि उससे अलग रखना है। ये सब सुन्नतें हैं सजदे की हालत में। और एक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, सजदे की हालत में आपके हाथ जो होते हैं, ये जो हिस्सा होता है आपका, ये जो हिस्सा जमीन से नहीं लगना चाहिए, सिर्फ जमीन से इतना ही लगना है, इतने हाथ, बाकी का ये जमीन से उठा रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बिछा देते हाथों को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुत्ते का तरीका है। नबी ने हदीस में क्या फरमाया, जब तुम सजदा करो कुत्ते की तरह अपने हाथों को मत रखो। कुत्ता कैसा रखता देखिए आप, जब वो बैठता तो पूरा सामने के हाथ पूरे बिछा देता, हो बिछा के बैठता ना, कभी ऐसा भी बैठता, लेकिन कभी पूरे पैरों को, हाथों को बिछा देता, जमीन से लगा देता ये पूरा हिस्सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जमीन से उठे रहे और ये आपके बाजुओं से अलग रहे, कोहनियां भी आपके रानों से अलग रहे। ये सजदे की हालत में होने वाली सुन्नतें हैं। इस सिलसिले में दलीलें मौजूद हैं, मैं टाइम नहीं है दलीलें जिक्र करूं आपके सामने, लेकिन आप मसले जहन में रखें, ये काफी है। एक और सुन्नत नमाज की हालत में बैठने के दौरान होती है। नमाज में जब आप बैठते हैं, देखिए दो सजदों के दरमियान इसी तरह 3 और 4 रकात वाली नमाजों में पहले तशहुद में एक ही तरीका है बैठने का, उसको इफ्तिराश बोलते हैं। इफ्तिराश का क्या मतलब है कि आपका जो सीधा पैर है ना, उसको ऐसे खड़ा करना है और लेफ्ट पैर पर बैठ जाना है, आपको लेफ्ट पैर पर बैठ जाना है, ये इफ्तिराश बोलते हैं। आइए आप दिखाइए थोड़ा। हाँ, बोर्ड है ना, अच्छा बहुत अच्छे, इधर नजर नहीं आ रहा, वो आपको नजर आ रहा, लेकिन आप दिखा सकते हैं थोड़ा, यहां आइए। असल देखिए नमाज का पूरा तरीका मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, तो ये एक मसले में बस बताना है। ये देखिए इफ्तिराश है, ये इसको क्या बोलते हैं, इफ्तिराश। ये जो पैर है ना इनका, कौन सा पैर है ये जो खड़ा है, सीधा पैर है, सीधे पैर को खड़े रखना है और बैठना किस पे है, बाएं पैर पर बैठना, इसको इफ्तिराश बोलते हैं। ये कब कब बैठना है इसी तरीके से, 2 सजदों के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, 3 और 4 रकात वाली नमाजों में पहले तशहुद में इसी तरह 2 रकात वाली जो नमाज होती है उसमें भी ऐसा बैठ सकते हैं। सलाम 2 रकात वाली जो नमाज, फजर की नमाज में भी ऐसा बैठ सकते हैं। वाज़ेह है मसला, अब रुकिए अभी। इसको क्या बोलते हैं, इफ्तिराश बोलते हैं इसको। एक और सुन्नत यह है कि जब आखिरी तशहुद होता है ना, 2 या 3 रकात वाली नमाजों का आखिरी तशहुद, उसमें कैसे बैठना, तवर्रुक बोलते हैं उसको, तवर्रुक। उसका तरीका यह है कि आप सीधे पैर को खड़ा रखें और लेफ्ट पैर आपके सीधे पैर के अंदर से थोड़ा बाहर निकाल दें, अंदर पैर से आप बाहर निकाल दें। आपको उधर नजर नहीं आ रहा, आप मालूम हो रहा है ना आपको कैसे बैठना, नहीं मालूम हो रहा है तो आप वहां भी जाके दिखा सकते, समझ में आ रहा ना। इंशाअल्लाह जब अगले दर्स में या इससे उसके बाद जो मसाइल खत्म होंगे तो पूरा तरीका बताया जाएगा नमाज का, ठीक है। ये इफ्तिराश और तवर्रुक ये भी क्या है, ये मुस्तहब है, यानी अफजल है। ये कुछ सुन्नतें थी जो मैंने आपके सामने अभी जिक्र की हैं। एक सुन्नत ये भी है कि जब आप दूसरी रकात के लिए उठते हैं और चौथी रकात के लिए उठते हैं, दूसरी रकात के लिए और चौथी रकात के लिए जब उठते हैं तो उठते हुए बाज लोग एड़ियों के बल ही उठ जाते हैं,
गलत तरीका है, बल्कि आप बैठें जमीन में आराम से फिर उठें। आप बताइए उसको थोड़ा, वो गलती क्या होती है? अब ऐसा है ना, तो उड़ते हुए क्या करते, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ऐसा उड़ते, ऐसे ही उड़ जाते। दूसरी रकात के लिए उठते हुए और आखिरी रकात के लिए उठते हुए, कैसे उठना सही तरीका? नहीं, जो शुरू से बताइए। जो सजदे में है आप, मिसाल के तौर पे सजदे में है, सजदा जाइए सजदे में। हाँ, अभी 1 मिनट, अभी ये पहली दूसरी रकात के लिए उठ रहे हैं और चौथी रकात के लिए उठ रहे हैं। कैसे उठना है? ऐसे जी देखिए, अभी ऐसे बैठना है आराम से, ऐसे बैठ के फिर उठना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते लोग, कुछ लोग ऐसा उड़ते हैं, ऐसा डायरेक्ट, बैठते नहीं, बल्कि उड़ते उड़ते मतलब सजदे की हालत में डायरेक्ट उड़ जाते हैं एड़ियों के बल। वो गलत तरीका है। इस सुन्नत को भी आप याद रखें। ये छोटी छोटी चीजें अगरचे हैं, लेकिन आप इस पर नबी की सुन्नत समझ के अमल करेंगे तो ये इस बात की दलील होती है कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मोहब्बत कैसे है दिल में, अल्लाह की नबी से कैसे बताएंगे आप? यही सब छोटी छोटी चीजें करके आप सबूत देंगे कि मैं सच्चा नबी से मोहब्बत करने वाला आदमी। आप ये नहीं चलता ना, नमाज नहीं, नमाज होती अगर बोले थे मौलाना चलता छोड़े तो ठीक है, नमाज हो जाएगी, लेकिन मतलब ये है कि नबी की मोहब्बत आपके दिल के अंदर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होना चाहिए। लाइट ले रहे हैं आप नबी की सुन्नतों को। तो मेरे कैफ, इन बातों का आप ख्याल रखें। आगे कुछ और बातें थी, मैं समझता हूं कि वक्त नहीं है, काफी देर हुआ, सवालों को खत्म करना था। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें कही गई हैं उस पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाते जाते इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ते जाइए।